lovely people out there, welcome to my YouTube channel and thanks for clicking on this video. हमने अपने चैनल पे एक इम्पोर्टेंट सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट किया है एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज ऑफ लेक्चर इज ड्रग्स व्हिच आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन. So in our previous video lecture, we understood what are all important class of medication which can be useful in the treatment of hypertension. Now in our today's video lecture, we are going to understand a next important class of medication which is mainly acting on our renin-angiotensin aldosterone system. But before moving on to the drugs which are acting on our renin-angiotensin aldosterone system, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में RAS सिस्टम भी बोलते हैं, we must first understand the concept of renin-angiotensin aldosterone system, how it actually works, and जब ये particular system activate होता है, जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज क्यों हो जाता है. So first of all, in our today's video lecture, we are going to start with the very basic concept of our renin-angiotensin aldosterone system. So let us see कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कौन सी चीजें डिस्कस करने वाले हैं. So in our today's video lecture, we are going to understand the basic concept of our renin-angiotensin aldosterone system. Then we will understand कि जब हम ये renin-angiotensin aldosterone system को जब हम stimulate करते हैं, so how this RAS is increasing our blood pressure. And finally we are going to see कि ये जो हमारा RAS system है, वहाँ पे जो हमारे ड्रग्स होते हैं वो कौन से कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, एंड ये जो ड्रग्स होते हैं हाउ बाय एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर सिस्टम इट विल ड्रॉप अवर ब्लड प्रेशर. So the very first concept that we are going to deal with is the basic concept of our renin-angiotensin aldosterone system. So let us begin with our RAS system. So as you can see on your screen, here is our pictorial representation of our RAS system. Now ये जो RAS system होता है इसकी कहानी खास से शुरू होती है. So the answer is एक हमारा organ होता है and the name of that particular organ is a liver. Now ये जो liver होता है it is producing a peptide and the name of that particular peptide is angiotensinogen. Now ये जो angiotensinogen है, this angiotensinogen is getting converted into angiotensin 1 and ये जो conversion होता है that is carried out by our very important enzyme and the name of that particular enzyme is renin. So ये renin के presence में this angiotensinogen which was produced by our liver, that angiotensinogen is getting converted into angiotensin 1. Now ये जो renin होता है वो कौन secrete out करता है? So the answer is कि ये जो enzyme होता है renin that is secreted by our kidneys. So kidneys will release renin and ये जो renin है that is providing the conversion of our angiotensinogen into angiotensin 1. Now ये जो angiotensin 1 होता है, this angiotensin 1 is getting converted into angiotensin 2 and this particular process is carried out by a very important enzyme and the name of that particular enzyme is angiotensin converting enzyme, जिसे हम short form में ACE भी बोलते हैं. Now the question is कि ये जो ACE होता है that is angiotensin converting enzyme, ये प्रोड्यूस कौन करता है? So the answer is कि ये जो ACE enzyme होते हैं they are basically produced by our lungs. So lungs से ACE enzyme आएंगे and this angiotensin converting enzyme is going to perform the conversion of our angiotensin 1 to angiotensin 2. Now ये जो angiotensin 2 है यहाँ तक हमें कहानी पता चलती है, but we need to understand more about this angiotensin 2. So as you can see on your screen, here we have the enzymes involved in the process of our RAS system. So अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारा angiotensin 1 है that is getting converted into angiotensin 2 by a very important enzyme and the name of that particular enzyme is angiotensin converting enzyme.
नाउ ये जो एंजियोटेंसिन 2 होता है that is further getting converted into angiotensin 3, and this angiotensin 3 is further getting converted into angiotensin 4 by a very important enzyme, and the name of that particular enzyme is aminopeptidase. Now हमने इतने सारे एंजियोटेंसिन के बारे में पढ़ा है, तो इसमें से जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट फोकस होना चाहिए दैट इज एंजियोटेंसिन 2 एंड एंजियोटेंसिन 3. नाउ यहाँ पे जो हमारा रास सिस्टम होता है दैट इज प्रोड्यूसिंग एंजियोटेंसिन 2 एंड एंजियोटेंसिन 3. नाउ ये जो एंजियोटेंसिन 2 होता है एंड एंजियोटेंसिन 3 होता है, इनके जो फंक्शंस होते हैं वो लगभग सिमिलर होते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ अवर एंजियोटेंसिन 2 and how this angiotensin 2 by working on its angiotensin receptor, how it is increasing the blood pressure in the patient. So let us focus on the different pathways, or we can say ये angiotensin 2 कहाँ पे काम करेगा and उसके वजह से patient का जो blood pressure होता है वो बढ़ क्यों जाता है. So as you can see on your screen, here we have our angiotensin 2. Now ये जो angiotensin 2 होता है that is a very potent vasoconstrictor. Now whenever I say a particular substance is a vasoconstrictor, what do I mean? I mean कि जो vasoconstriction की प्रॉपर्टी होती है वो angiotensin 2 में बहुत ज्यादा होती है. Now from our previous video lecture of our basic understanding of our hypertension, हमें ये पता है कि जब भी हम वेजो कंस्ट्रिक्शन करेंगे जो पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. नाउ हम ये वेजो कंस्ट्रिक्शन दो जगह पे कर सकते हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज हम आर्टेरियोल्स को कंस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, एंड अगर हमने आर्टेरियोल्स को कंस्ट्रिक्ट किया सो डेफिनेटली आई टोल्ड यू कि जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होगा वो पर्सन का इंक्रीज हो जाएगा. एंड अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर पर्सन का इंक्रीज होता है सो बाय डिफॉल्ट वी नो कि पर्सन का जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. नाउ सेकंड जगह पे कहां पे हम वेजो कंस्ट्रिक्शन कर सकते हैं. सो द आंसर इज जो हमारा वेन्स होता है वहां पे हम वीनो कंस्ट्रिक्शन कर सकते हैं. नाउ व्हेनेवर वी आर परफॉर्मिंग वीनो कंस्ट्रिक्शन फ्रॉम आवर प्रीवियस बेसिक वीडियो लेक्चर, हमें यह पता है कि जब भी हम वेन्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं तो डेफिनेटली जो ब्लड वॉल्यूम जो हमारे हार्ट पे जा रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा. उसके वजह से जो मायोकार्डियल स्ट्रेच होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. एंड अकॉर्डिंग टू अवर फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, अगर स्ट्रेच अगर ज्यादा होगा डेफिनेटली हार्ट विल कॉन्ट्रैक्ट मोर रैपिडली, मोर फोर्सफुली, एंड उसके वजह से जो पर्सन का स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. एंड अगर स्ट्रोक वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है सो डेफिनेटली जो कार्डियक आउटपुट होगा पर्सन का वो इंक्रीज हो जाएगा. एंड वी नो कि अगर पर्सन का कार्डियक आउटपुट अगर इंक्रीज होता है सो बाय डिफॉल्ट जो पर्सन का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. नाउ जो भी मैंने यहाँ पे बोला है लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट. सो एज आई टोल्ड यू कि ये जो एंजियोटेंसिन 2 है that is a very potent vasoconstrictor. Now potent vasoconstriction whenever we are contracting our arterioles, जिसे हम arterioconstriction बोलते हैं, arterioconstriction जब भी हम करेंगे डेफिनेटली जो पर्सन का टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन अवर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो पर्सन का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. नाउ सेकंड पॉइंट, अगर हमने पोटेंट अगर वेजो कंस्ट्रिक्टर है, अगर हमने वेन्स को कंस्ट्रिक्ट किया है एंड दैट कंस्ट्रिक्शन ऑफ आवर वेन इज नोन एज वीनो कंस्ट्रिक्शन. सो इफ वी इंक्रीज द वीनो कंस्ट्रिक्शन डेफिनेटली जो ब्लड वॉल्यूम हार्ट पे जा रहा था वो इंक्रीज हो जाएगा. उसके वजह से जो हार्ट पे जो प्रीलोड है वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड उसके वजह से जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा. एंड अगर स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है सो डेफिनेटली जो पर्सन का कार्डियक आउटपुट है दैट विल इंक्रीज. एंड वी नो फ्रॉम आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग
कि अगर कार्डियक आउटपुट अगर बढ़ता है सो बाय डिफॉल्ट जो पर्सन का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हेनेवर वी आर स्टिम्युलेटिंग अवर रास सिस्टम, वहां पे जो पर्सन का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. Now moving on to our next important function of our angiotensin II. Now ये जो angiotensin II है, as you can see on your screen, कि यहाँ पे मैंने जब बोला था कि यहाँ पे angiotensin II प्रोड्यूस हो गया है. Now this angiotensin II can also work on our adrenal gland. Now जब भी ये adrenal gland पे जब हमारा angiotensin II काम बेसिकली करता है, what is the effect? So whenever this angiotensin II is acting on our adrenal gland, definitely वहाँ पे it will increase the release of aldosterone. Now हमारे बॉडी में aldosterone का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? So just remember कि ये जो aldosterone होता है, it is increasing the reabsorption of our sodium and water. Now आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर सोडियम एंड वाटर का अगर रीएब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन आवर ब्लड प्रेशर? सो द आंसर इज वेरी सिंपल. तो जब भी हमारी बॉडी सोडियम बेसिकली रिटेन करती है, वी अंडरस्टैंड कि जो हमारा सोडियम रिटेंशन की वजह से ऑलवेज आवर सोडियम इज फॉलोड विद वाटर. सो अगर हमारी बॉडी ज्यादा सोडियम अगर रिटेन कर रही है, so definitely our human body is retaining more water. अगर हमारी बॉडी ज्यादा वाटर अगर रिटेन कर रही है, so can I say कि बॉडी में जो ओवरऑल हमारा ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा. नाउ अगर ज्यादा ब्लड वॉल्यूम हमारे बॉडी में अगर इंक्रीज होता है, so can I say जो ब्लड हमारा हार्ट पे जाता है, can I say that will increase? Why? Simply because कि बॉडी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया है. सो डेफिनेटली जो ब्लड हार्ट में जाएगा दैट विल इंक्रीज. एंड अगर हार्ट पे जो ब्लड जा रहा है अगर वो इंक्रीज हो गया, सो कैन आई से कि हार्ट के ऊपर जो प्रीलोड होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. अगर प्रीलोड अगर इंक्रीज होता है सो डेफिनेटली स्ट्रोक वॉल्यूम वहां पे बढ़ेगा. एंड अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा so there will be increase in our cardiac output, and once अगर cardiac output अगर बढ़ता है so we know by default there will be increase in our systolic blood pressure. Now let us see this particular concept with the help of flow chart. So as you can see on your screen कि यहाँ पे जो angiotensin II है that is increasing the secretion or we can say the release of aldosterone. Now aldosterone के वजह से क्या होता है? This aldosterone is increasing the reabsorption of our sodium and water, and उसके वजह से जो हमारा overall blood volume है that is increasing. Once our overall blood volume has increased, definitely जो हार्ट पे जो प्रीलोड होगा वो इंक्रीज होगा. एंड अगर हार्ट पे अगर प्रीलोड इंक्रीज हो रहा है, डेफिनेटली जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. एंड अगर स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है सो डेफिनेटली जो कार्डियक आउटपुट होगा वो इंक्रीज होगा. एंड अगर कार्डियक आउटपुट अगर बढ़ता है सो बाय डिफॉल्ट देयर विल बी इंक्रीज इन आवर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. नाउ लेट अस सी वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आवर angiotensin II. So as you can see on your screen, here is our pictorial representation of our glomerulus. Now ये जो glomerulus होता है it is having two important arterioles. The very first one is known as afferent arteriole and the second one is known as efferent arteriole. Now ये जो angiotensin II के जो receptors होते हैं they are very well good concentrated on our efferent arterioles. So let us see कि जब हम efferent arterioles पे angiotensin के जो receptors होते हैं जब हम उसको स्टिम्युलेट करते हैं what will be its effect. So as you can see on your screen, we are learning about the effect of our angiotensin II on our efferent arteriole. Now angiotensin II, whenever it is working on our efferent arteriole,
it produces a very important effect, and that particular effect is known as vasoconstriction. सो इफेरेंट आर्टीरियोल में जब भी हम एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर को स्टिम्युलेट करते हैं, दिस एंजियोटेंसिन 2 is producing a effect and that effect is known as vasoconstriction. Now coming on to our afferent arteriole. Now afferent arteriole में in our human body we have a very important substances and the name of that particular substance is known as prostaglandins. Now ये जो prostaglandins होते हैं, what is the effect of our prostaglandin on our afferent arteriole? Let us understand that particular concept, and once we have developed the concept of our prostaglandin effect on our afferent arteriole and angiotensin 2 effect on our efferent arteriole, we will combine both this concept and I will tell you what is the importance of that particular concept. So let us see कि प्रोस्टाग्लैंडिन का इफेक्ट एफरेंट आर्टीरियोल पे क्या होता है. So as you can see on your screen, here is our prostaglandin. Now जब भी prostaglandins, whenever it is stimulating on our afferent arteriole, what it is doing? It is producing a effect, and that particular effect is known as vasodilatation. Now let us merge both this concept and let us see what is the effect on our glomerular filtration rate. Now I told you कि जो हमारा angiotensin 2 था, what was the effect of angiotensin 2 on our efferent arteriole? It was performing a phenomenon, and that particular phenomenon is known as vasoconstriction. And what was the effect of our prostaglandin on our afferent arteriole? It was producing an effect that is known as vasodilatation. Now ये जो afferent arteriole है, ये किस काम के लिए आता है? So जो हमारा ब्लड होता है या फिर हम उसको प्लाज्मा बोलते हैं, ये जो ब्लड या फिर प्लाज्मा होता है, that is coming via our afferent arteriole. So अगर just think कि अगर afferent arteriole का डायमीटर अगर ब्रॉड है, that means अगर हम afferent arterioles को डायलेट करते हैं, so definitely जो ब्लड या फिर प्लाज्मा यहाँ पे accumulate होगा, वो कम होगा कि ज्यादा होगा? So the answer is यहाँ पे जो प्लाज्मा या फिर ब्लड होगा, definitely वो ज्यादा होगा. क्यों? Because simply ये जो afferent arteriole पे जो prostaglandins होते हैं, they are producing a effect that is known as vasodilatation. So vasodilatation की वजह से क्या होता है कि इसका जो डायमीटर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, and because of that increase in the diameter of our afferent arteriole, जो भी ब्लड है, जो भी प्लाज्मा है, वो यहाँ पे ज्यादा accumulate होगा. Now the second reason for accumulation, अभी मैंने बोला था कि ये जो angiotensin 2 होता है, what is the effect of angiotensin 2 on our efferent arteriole? I told you कि ये जो angiotensin 2 होता है, that is producing a effect that is known as vasoconstriction. So can I say कि जो भी यहाँ पे प्लाज्मा आएगा, can it effectively pass through this efferent arteriole? The answer is no, because efferent arteriole में हमने efferent arteriole को constrict करके रखा है. So जो भी यहाँ पे प्लाज्मा होगा, definitely that plasma is going to face some kind of a resistance, and उसके वजह से can I say कि यहाँ पे जो प्लाज्मा accumulation होगा, that will increase. So वही लिखा है. So because of this vasodilatory effect of on our afferent arteriole by our prostaglandin and vasoconstriction effect by our angiotensin 2 on our efferent arteriole, so जो भी यहाँ पे प्लाज्मा का accumulation होगा, definitely वो increase हो जाएगा. Now अगर यहाँ पे प्लाज्मा का accumulation अगर यहाँ पे increase हो जाता है, so definitely यहाँ पे बहुत ज़्यादा pressure आएगा, बहुत ज़्यादा force आएगा, and उसके वजह से जो amount of filter rate यहाँ पे जो नेफ्रॉन के अंदर जाएगा, that will increase. And my dear friends, this particular जो हमारा filter rate होता है, अगर वो increase हो जाता है, so definitely जो हमारा GFR होता है, that is known as glomerular filtration rate,
वो इंक्रीज हो जाएगा। सो फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर कि जो हमारा एंजियोटेंसिन 2 होता है दैट इज प्रोड्यूसिंग अ वेसोकंस्ट्रिक्शन इफेक्ट ऑन आवर इफेरेंट आर्टेरियोल, एंड जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं दैट इज प्रोड्यूसिंग अ वेसोडाइलेटेटरी इफेक्ट ऑन आवर एफेरेंट आर्टेरियोल। दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो किडनीज में जो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। नाउ इसका इंपॉर्टेंस बेसिकली क्या है, आई विल टेल यू कि जब हम ये ड्रग्स पढ़ेंगे आई विल टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट मर्जर। नाउ ये तो हो गया पूरे के पूरे हमारे रास सिस्टम के बारे में। नाउ वी मस्ट अंडरस्टैंड कि रास सिस्टम से ब्लड प्रेशर डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है। सो अगर हाइपरटेंशन के पेशेंट को हमें ट्रीट करना है सो डेफिनेटली वी नीड टू इनहिबिट दिस पर्टिकुलर रास सिस्टम। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारे पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है जिसके मदद से ये जो रास सिस्टम है उसको हम इनहिबिट कर सकें। एंड इफ वी इनहिबिट दिस पर्टिकुलर रास सिस्टम डेफिनेटली जो पर्सन का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है एज वेल एज जो पर्सन का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट दैट वी कैन यूज इज ये जो एंजाइम है दैट इज रेनिन, हम उसको इनहिबिट कर सकते हैं। सो द क्लास ऑफ ड्रग्स व्हिच इनहिबिट आवर एंजाइम दैट इज नोन एज रेनिन, वो क्लास ऑफ ड्रग्स को हम बोलते हैं रेनिन इनहिबिटर्स। तो द सेकंड कॉन्सेप्ट दैट वी कैन अप्लाई इज कि ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है which is responsible for conversion of our angiotensin 1 to angiotensin 2, इसके अगर हमने इसको ये एंजाइम को अगर हमने इनहिबिट कर दिया so definitely there will be no production of our angiotensin 2 and जो भी प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर पाएंगे। so the second class of medication we have is known as ACE inhibitors। now third point हम क्या कर सकते हैं कि ये जो angiotensin 2 है definitely this angiotensin 2 is working on some kind of angiotensin receptors। so हम क्या कर सकते हैं कि ये जो angiotensin जिस रिसेप्टर पे काम कर रहा है उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि उससे क्या होगा कि ये जो angiotensin 2 अगर बना भी डेफिनेटली अगर रिसेप्टर ही प्रेजेंट नहीं होंगे so this angiotensin 2 will not show its effect। so the third class of medication we have is एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ARBs भी बोलते हैं। सो ये तो हो गए हमारे डिफरेंट स्ट्रेटेजीज दैट वी कैन यूज फॉर अवर ड्रग्स, और वी कैन से जो पेशेंट का जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। आई होप यहाँ तक आपने वीडियो लेक्चर देखा है सो डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा। सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर we are going to understand जो आज हमने जितने भी क्लास ऑफ मेडिकेशन देखे हैं उसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड आई विल टेल यू कि ये जो ड्रग्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, एज वेल एज आई विल ऑल्सो टेल यू कि ये ड्रग्स के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। सी या, बाय बाय, हैव अ गुड डे।